Okay, so yes, so I welcome you all to Pinnacle Guidance Tutorials. Today we are going to see again a session on time and work. Okay, so this is our fifth session. Fine. So and yes, each session is not just comprises of questions. Actually, each question comprises a concept which are used in further questions. Fine. So if you haven't seen any of the previous session, I would recommend you to go back and watch at if you have less time, so you can watch at 1.5, 1.25 or 2. Fine. Else see it completely and then continue with this video. Fine. So I assume that you have seen previous videos and have came here after seeing to attend this next session. Fine. So moving on with this session. Okay, so first question, here it comes. You have 1 minute to solve this question. Fine. So yes, as you all can see that A and B, it's just repeated. Fine. It's not like these questions. Now you are feeling, if you have attended all my last 4 sessions on this time and work question series, so you are now realizing that these questions are, you are saying that these are repeated and very easy, because the reason behind it is that concept which you have learned from the last 4 sessions, fine, is the basic of how to solve this time and work questions. Fine. So first, after reading this question, the first thing that strike in your mind is the total work assumption. Fine. If this strikes your mind, again I am repeating, 50% of your question is completed. Fine, there itself. Now the second thing, what should be the total work that you should assume? Fine, it should be the LCM of 16, 12, 4, 2. So what can be the LCM of these four numbers? It can be 48. Fine, LCM of this, you can take even 96, you can take even 100. Okay, but then comes that it will hinder your easy calculations and make your task difficult. Fine. So moving on with the answers. Yeah, so first of all, just go through the question. A and B together can complete a job in 16 days. That same job is done by B and C together in just B and C together can working alone. Okay, not together. B and C working alone can finish the same job in 12 days. Fine. So from here we got to know the B and C efficiency, and from this last sentence we got to know A efficiency. Fine. So A and B commence the work for the job for 4 days. To total efficiency for 4 days is A and B. Fine. Whereupon A leaves. Fine. So the efficiency for the next 2 days is just of B. Fine. And then he leaves, then B also leaves, and C starts. So the remaining number of work that C has to do, only C is doing that work. Fine. It is the total number and the work is completed. Fine. And what will be the total work? That assumption.
fine. So moving on with the question, let the number of days that C has to work be X, fine. So total work will be 48. So A efficiency plus B efficiency, as there was given, the A and B together did 16 together completed the job in 16 days, fine. So what is the total efficiency of A and B? 48 upon 16, that is 3 unit per day, fine. As you can see that both B and C working alone can finish the same job in 12 days, fine. So B efficiency will be equal to C efficiency will be equal to 48 upon total days required, that is 12, fine. So it is 4 unit per day, fine. So as I said that it is for the first 4 days A and B did the job, fine. For the first 4 days A efficiency plus B efficiency, fine. And the next 2 days B continues for 2 more days, so only B do the job for 2 days more, fine. After that B also leaves and only C works for X number of days, fine. And the whole work is completed. And what is the whole work unit? It is 48. That is our total work, fine. So what is this? 3. A plus B is from here 3, fine. So 4 into 3 plus 2 into 4 plus x4 is equal to 48, fine. 4 3 are 12, 2 into 4 8 is equal to 4x is equal to 48, fine. So 4x will be equal to 28, as is 12 plus 8 is 20. And moving on to the RHS side, the 48 minus 20 is equal to 28, fine. So x will be 7 days. 7 more days C has to work to complete the remaining job, which in the starting that A and B together did for 4 days plus B did 2 more days, fine. Sure. Now you can observe that A and B together did the same job in 16 days. B and C alone did the same job in 12 days. So can you infer from these two sentences? आपको ये पता चल रहा होगा that sorry, A is a destructor. वो काम कर नहीं रहा, वो काम बिगाड़ रहा है, क्योंकि वो तभी A के साथ मिल के उसने 16 दिन तक काम किया और वो B के साथ B और C अकेले ही 12 दिन में काम ख़त्म कर ले रहा है. तो A की अब वहाँ से भी नहीं समझ में आया, तो अगर B की एफिशिएंसी C की एफिशिएंसी 4 है और A और B की एफिशिएंसी ऐड करते हैं तो 3 है, तो यहाँ से पता चल गया A की एफिशिएंसी -1 है. -1 इन द सेंस कि वो एक डिस्ट्रक्टर है, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन, ओके. सो यू आर गेटिंग 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट. So time's up, fine. So the question is like, it's a new type of a question. I haven't discussed any of the concept in my previous or this last question, fine. So please pay attention on this question. Yeah. So a laborer was appointed by contractor on the condition he would be paid for rupees 150 for each day of his work, बट वुड बी फाइंड ₹30 पर डे फॉर हिज एब्सेंट. मतलब अगर वो काम करने आएगा तो उसको 150 रुपये मिलेंगे, ठीक है. और अगर वो काम किसी दिन नहीं किया तो उसको 30 रुपीज़ उससे काट लिए जाएंगे. फिर 20 दिन के बाद तो लेबर को टोटल उसको उसकी इनकम कितनी हो गई, 2800
20 रुपीज़, फाइन, 2820 रुपये, दैट मीन्स 2820, फाइन। सो कुछ एक हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि वो कितने दिन काम पे आया, लेट दैट नंबर बी एक्स, फाइन। तो वो एक्स दिन आया तो उसको कितने रुपए मिले होंगे इस एक्स दिन का, 150 रुपये, ठीक है। और वो एक्स दिन आया तो वो कितने दिन नहीं आया, 20 माइनस एक्स रुपीज़, और उससे कितने घटे होंगे, तो 30 मल्टीप्लाई वो 20 माइनस एक्स, फाइन। कुछ आंसर देखते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कितना शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं अभी इसलिए 1 मिनट दे रहा हूँ, नेक्स्ट से हम लोग कुछ वीडियोस के बाद आई विल गिव यू लेस टाइम, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस यू विल बी डूइंग वेरी क्विकली। अभी कॉन्सेप्ट नया था, आपको शायद नहीं पता होगा, इसलिए मैंने टाइम ज़्यादा दिया था, ठीक है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज एक्स, एक्स क्या है, ये जितने दिन उसने काम किया, ठीक है। 150 क्या है, 150 वो जितने दिन आया है, ठीक है, उसका पेमेंट कितना हुआ, एक्स, 150 एक्स, टोटल इतने दिन वो आया तो उसका टोटल पेमेंट हर एक दिन का 150, तो एक्स दिन आया तो 150 एक्स, माइनस, अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि उससे फाइन लिया जा रहा है, ठीक है। वो कितना लिया जा रहा है, 30 डेज, 30 रुपीज़ पर डे, और वो कितने दिन नहीं आया है, 20 माइनस एक्स, क्योंकि अगर x दिन आया है तो रिमेनिंग डेज कितने हुए, 20 माइनस एक्स, तो 150x माइनस ऑफ 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 30, 2820। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे x इज इक्वल टू 19, फाइन, ठीक है। एनी इश्यूज, x इज इक्वल टू 19 मतलब सिर्फ वो एक दिन नहीं आया है और 20 के 20 डेज आया है, ठीक है। सो एंड यस, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस और माय प्रीवियस सेशंस और एनी अदर डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू विल गेट माय ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मेल कर दो, मेल मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, and yes, comment as well if you have any feedback on my video as fine. So now moving on with the next question, फाइन। सो समझ में आ गया ना ये 19 कैसे आएगा, वो 150 इंटू मल्टीप्लाई ये टोटल नंबर ऑफ वो एक्स नंबर डेज में आया है, तो टोटल हो जाएगा 150 इंटू एक्स। इतने दिन नहीं आया है तो -30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने दिन वो रिमेनिंग हो जाएगा 20 माइनस एक्स, और ये टोटल इक्वेशन कितना आया, ये 2820, ये टोटल उसको पेमेंट आफ्टर 20 दिन के बाद मिला है। तो वहाँ से हम लोगों को कैलकुलेशन आ गया, x 19 दिन है, x मतलब जितने दिन उसने काम किया है, तो 19 दिन काम किया है और एक दिन एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। Just a second guys, sorry for the interruption. Yes, fine. So I suppose that you have solved the question till now, because 1 minute was already done, ठीक है। So yes, so see over here, you are getting a big numbers like 120, 150, 48, 20, 12, fine. So what will you be doing over here, stick to the basic। मैंने बेसिक आपको क्या बताया है, यहाँ पे आपको वर्क एज्यूम करना है, ठीक है। तो आप वर्क कितना एज्यूम करोगे, आप बताओ, 120, 150, 200, मतलब 20, 48 और 12, इन सब का कितना होगा एलसीएम, कोई आइडिया। चलो बिग नंबर्स का ले लो, क्योंकि और तो सारे छोटे छोटे नंबर्स हैं वो सब डिवाइड ही हो जाएंगे,
ठीक है। तो 120 और 150 का कितना होगा एलसीएम? 600। फाइन। अब 1200 भी ले सकते थे, 300 भी ले लीजिए, कोई अब मुझे फ़र्क नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 1 भी ले लीजिए, 0.5 भी ले लीजिए। मैं आपको इसलिए कोई बात नहीं, अब नो इश्यूज़, हम लोग एक और सेशन करेंगे इसके बाद या नेक्स्ट टू नेक्स्ट, कि जिसमें आपको मैं वो वाले भी दिखाऊंगा जिसमें एक 1 डे के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दोनों चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, मैं दोनों चीज़ें सिखाऊंगा, एंड इट विल अप टू यू। एंड मेरी एडवाइस यही है कि यू शुड गो विद दिस वर्क एग्जाम्पशन। ये इजी हो जाता है, वो आगे चल के थोड़ा आपका स्टूडेंट होगा, मतलब थोड़ा टफ आपको पड़ेगा। ठीक है। सो अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मतलब पहले आंसर इसका डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यस, ये क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज, बी कैन डू इट इन 150 डेज। ठीक है। तो हम लोग एक अगर वर्क एज्यूम कर लेंगे तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दे वर्क फॉर 20 डेज, तो मतलब 20 दिन तक ए और बी मिल के काम करते हैं। फिर उसके बाद ए चला जाता है और बी काम करता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं बी कितने दिन तक फिर एक्स्ट्रा काम करता है, बी 12 दिन तक और एक्स्ट्रा काम करता है। अब बी के साथ कौन मिल गया, पहले ए बी 20 दिन तक काम करते हैं, फिर बी अकेला फिर 12 दिन तक काम करता है। ठीक है। फिर सी के साथ, फिर बी के साथ कौन ज्वाइन करता है, सी ज्वाइन करता है। और कितने दिन तक वो लोग काम करते रहते हैं, 48 मोर डेज। ठीक है। और इतने दिन में पूरा उनका काम फिनिश हो जाता है, तो वो टोटल काम कितना हो जाएगा जो हम लोग ने वर्क एज्यूम करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ये हमारा बेसिक स्केलेटन ऑफ योर आंसर ऐसा होना चाहिए। आगे चलें, मतलब आंसर्स के साथ। तो लेट द वर्क बी 600। हमारा वर्क कितना है, 600 मैंने एज्यूम कर लिया। तो हमको ये पता था कि वो 120 डेज देता है, ए कैन डू इट इन 120। तो ए की एफिशिएंसी 600 यूनिट अपॉन 120 विच इज़ इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। ठीक है। बी वही 600 काम के लिए 150 दिन लेता है, तो 600 यूनिट अपॉन 150 इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे। ये बी की एफिशिएंसी आ गई। अब इक्वेटिंग टोटल, क्योंकि वो ये पहले ए और बी 20 दिन, फिर बी अकेले 12 दिन, फिर सी के साथ बी और सी 48 डेज, टोटल काम तो कंप्लीट हो जाता है ना। तो टोटल काम कितना है, 600। तो पहले 20 दिन में कितनी एफिशिएंसी, कितने लोग काम किए हैं, सिर्फ ए और बी काम किया। ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। ठीक है। तो पहले 20 दिन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 + 4 9, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 4 9। उसके बाद ए चला जाता है और बी कंटिन्यूज टू वर्क 12 डेज आफ्टर, मतलब 12 दिन तक बी काम और करता है। तो 12 दिन तक कितनी एफिशिएंसी से वर्क हो रहा होगा, 4 की एफिशिएंसी से, वो सिर्फ बी ही काम कर रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 48 मोर डेज, 48 दिन तक कौन साथ में काम करता है, सी जॉइंस द वर्क एंड वर्क इज कंप्लीटेड इन 48 मोर डेज। ठीक है। तो सिर्फ सी की एफिशिएंसी प्लस बी भी काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी 4 इज इक्वल टू, पूरा काम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इज कंप्लीटेड, द वर्क इज कंप्लीटेड। फाइन। तो कितना है, हम लोगों ने एज्यूम किया था 600। फाइन। सो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 9 इंटू 20 180, 12 4 जा 48, 48 इंटू 4 प्लस सी एफिशिएंसी। फाइन। तो जब इसको मैं इधर ले जाता हूँ RHS में, तो 372, और जब ये सी की एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है तो वो आती है 3.75। बहुत इजी होगी कैलकुलेशन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। फाइन। सो जस्ट अ सेकेंड। यस। So so the number of required days from C to do to complete that work will be the total work. And what was the total work? Work was 600 units. Fine. And what was the efficiency of C, which we calculated? It was 3.75. So 600 units divided by 3.75 unit per day, so which will give us 160 days. Fine. So moving on with the next question. So you guys have 1 minute to solve this question out.
Fine. So your time is up. So let us start with the discussion. Okay. चलो. हाँ. A builder decided to build a farmhouse in 40 days. तो मतलब अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर आर 100 men, 100 more men are added. तो यहाँ पे आपको, अगर आपने लास्ट मेरे सेशंस किए होंगे तो उन सेशंस पे आप देख सकते होंगे दैट मैंने आपको बार बार यही बोला है कि जहाँ पे सिंगल मैन अकेले अकेले दिया हो या पाइप्स दिया हो वहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो. यहाँ पे यू कैन नॉट एज्यूम द टोटल नंबर ऑफ वर्क. Fine, you have to calculate the total number of work, then you have to equate the total number of work and find out the time. हो सकता है efficiency, हो सकता है कुछ भी हो सकता है. ठीक है, as if यहाँ पे टाइम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइम है. ठीक है. सो अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 40 days. ठीक है. उसके पास मतलब कुल मिला के 40 दिन का काम है. कब काम है 40 दिन का? अब ये देखो यहाँ पे 100 मैन ये है, 100 मोर ऐड हुए हैं. तो ये नहीं है कि उन 200 मैन की एफिशिएंसी किसी की M1 होगी, M2 होगी, M200 तक नहीं. सबकी एफिशिएंसी सेम होगी. मतलब सबकी एफिशिएंसी, एग्जांपल जैसे 100 ईंटें इधर से उधर ले जाने हैं 100 दिन में 10 लोगों को, तो हर एक बंदा अगर एक दिन में एक ईंटा उठा रहा है तो 10 के 10 एक ही ईंटा उठा के इधर से उधर रखेंगे. ठीक है. फाइन. और वो हर दिन सेम एफिशिएंसी रहेगी, 24 आवर्स, कोई थकान नहीं, कुछ भी नहीं. ठीक है. सो हम लोग का क्या है कि एक चीज़ हम लोग एज्यूम कर सकते हैं. जो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है. लेट द एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन इज m हो गई एफिशिएंसी. लेट द टोटल डेज रिक्वायर्ड विदाउट एडिशन ऑफ m. ठीक है. यहाँ पे क्या है, इफ़ नो एडिशनल मैन, यहाँ पे 100 और ऐड हुए थे ना, अगर वो बोल रहे हैं कोई भी एडिशनल मैन ना ऐड हो तो कितने नंबर ऑफ डेज लगने. ठीक है. तो मैं बोल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज दैट विल बी यूज्ड इफ़ नो एडिशनल मैन इज़ यूज. मतलब 100 के 100 ही मैन सिर्फ काम कर रहे हो, कोई वो 100 ऊपर से एक्स्ट्रा काम ना कर रहे हो. ठीक है. तो कितने दिन में पूरा होगा, उस टाइम ड्यूरेशन को डी मान लो. लेट द टोटल नंबर डेज रिक्वायर्ड विदाउट एडिशन ऑफ मैन इज डी. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ही एम्प्लॉयड 100 मैन इन बिगिनिंग एंड 100 मोर आफ्टर 35 days. मतलब 35 दिन तक तो ये 100 लोग काम किए और 5 वो लास्ट के 5 दिन तक ये 100 लोग और वो पहले के 100 लोग, मतलब 200 लोग काम किए. ठीक है. तो पहले 35 दिन तक कितनी एफिशिएंसी से काम हुआ है, 100 इंटू m. और आखिरी के 5 दिन में कितने एफिशिएंसी से काम हुआ, 100 + 100 इंटू m. ठीक है. तो फिर ये जब आप, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, कोई भी और एक्स्ट्रा नो एडिशनल मैन इज एडेड. ठीक है. तो पहले से ही कितने एम्प्लॉयड हैं, 100 के वो 100 ही रहते हैं. और हम लोगों ने कितना डेज एज्यूम किया है कि कितने ऐड होंगे, डी नंबर ऑफ मैन, वो सॉरी कितने डेज लगेंगे अगर कोई एडिशनल मैन ऐड नहीं हुआ तो डी. ठीक है. तो 100 इंटू m इंटू डी, ये टोटल नंबर ऑफ वर्क हो गया, ये भी टोटल नंबर ऑफ वर्क हो गया. दोनों को इक्वेट कर दिया हम लोग का, m से m कैंसिल हो गया. ठीक है. डी कैलकुलेट हो गया हमारा 45 डेज. अब क्या है डिले, उनको क्या चाहिए क्वेश्चन में. अब आप जल्दी से क्या करेंगे, वहाँ पे 45 एक होगा ऑप्शन में, अब आप जल्दी से करेंगे सीधे 45 लगा देंगे. आपका आंसर सही है, बट कुछ वो और पूछ रहा है आपको, वैसे देना है तो अलर्ट भी रहना है. क्या है, इफ़ नो एडिशनल मैन, तो डिले कितना हुआ, पहले कितने दिन लग रहे थे, 40 दिन. एक्चुअल डेज कितने लग रहे हैं, 45 दिन. और पहले प्लान्ड कितने थे, 40 दिन. तो डिले कितने का हुआ, 5 दिन का डिले हुआ. ठीक है. 45 - 45 डेज़ का डिले हुआ. ठीक है. आगे चलें. वो ये 5 डेज़ का डिले क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने वो एडिशनल 100 मैन नहीं ऐड किए थे. ठीक है. आगे चलें. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू गॉट 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट.
सो टाइम्स अप एंड ओके. सो क्या है, रमेश कैन डू finish a job in 20 days. He worked for 10 days and completed the remaining job uh, working with Dinesh in 2 days. How many days would Dinesh and Ramesh together take the come? फिर से यहीं पे अगर आपने मेरे लास्ट के सेशंस अटेंड किए होंगे और अगर नहीं भी किए हैं, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ प्लीज़ लास्ट के सेशंस देखिए. सब सारे कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड और ये लेवल के क्वेश्चंस अच्छे हैं. मतलब ऐसे आप इसे इजी फॉर्म में नहीं बोल दोगे कि बहुत इजी है हो जाएगा सब, नहीं, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं. मैंने इतनी बार आपको रिवाइज़ करवाया है तो आपको कॉन्सेप्ट पता है. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं आंसर क्या होगा. तो लेट अस सपोज दिनेश की एफिशिएंसी हम लोगों को पता नहीं, तो लेट दिनेश की एफिशिएंसी DEF मान लेते हैं यूनिट पर डे. ठीक है, अब हम लोगों को क्या है, यहाँ पे फिर मैंने वही बोला 20 डेज़ है. ठीक है, तो उसका मैंने वो ले लिया, क्या ले लिया, LCM ले लिया. 20 आ जाएगा, ख़त्म. ठीक है, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ वर्क हो गए 20 यूनिट्स. R की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 20 यूनिट्स. उसने डेज़ कितने चाहिए रमेश को, 20 दिन काम किए, तो फिर बाई 20 D. सो 1 यूनिट पर डी आ गया, 1 यूनिट पर डी. ठीक है, इक्वेटिंग दी टोटल वर्क कितना है 20 यूनिट्स का. अब वो बोल रहा है 10 दिन तक सिर्फ रमेश अकेले काम करता है, तो एफिशिएंसी 10 दिन की कितनी लगेगी, वो 1 यूनिट, क्योंकि रमेश की एफिशिएंसी 1 यूनिट रखी है, तो 10 × 1. उसके बाद बोलते हैं कि फिर बचे हुए 2 दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाता है और रमेश और दिनेश एक साथ काम करते हैं. ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी लग जाएगी, 1 + DEFF ये चीज़, और कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए. और ये पूरा काम हो गया, और पूरा काम कितना था, 20 था. ठीक है, सो इसको 10 को यहाँ पे 10 × 1 10 होता है, और 10 को RHS में ले जाएंगे तो 10 बचा. ये 2 से ये 5 कटा, और 5 - 1 होता है 4 यूनिट पर डे. 4 यूनिट पर डे क्या है, DEFF. ये इससे कितना गुना है, 4 टाइम्स गुना है. ठीक है, अब वो बोल रहा है हाउ मेनी डेज दिनेश एंड रमेश टुगेदर टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब. वो कैसे निकलेगा, टुगेदर रमेश एंड दिनेश एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 + 4. रमेश की कितनी 1 है, दिनेश की कितनी 4 है, तो 5 यूनिट पर डे. और टोटल डेज रिक्वायर्ड कितना है, टोटल डेज रिक्वायर्ड, टोटल डेज कितना है, हाँ ये टोटल वर्क कितना है 20 यूनिट्स. ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी 2 लोग काम कर रमेश और दिनेश कितने, 5 यूनिट. टोटल एफिशिएंसी 1 + 4 5 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितना, 4 डेज़. मतलब 4 दिन में ये टोटल वर्क कंप्लीट कर देंगे. अगर वैसे भी देख सकते हो, और कैसे एक हो जाएगा, 20 दिन का काम कर रहा है. ठीक है, कितने यूनिट्स, 20 यूनिट्स का. और इसने ये देखे ही वर्क फॉर 10 डेज़. ठीक है, तो मतलब आधा दिन कंप्लीट कर लिया इसने, बोले हाँ. ठीक है, तो आधा 10 दिन में कितना रमेश कंप्लीट कर लेगा, आधा काम कंप्लीट कर लिया. आधा काम ये दोनों मिल के रमेश और दिनेश कितने दिन में निपटाते हैं, 2 डेज़ में. ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में निपटाएंगे, 4 डेज़ में. इस देखिए मैंने आपके सामने सीधे बोलते में 10 सेकंड या 15 सेकंड का क्वेश्चन है और मैंने आपको 1 मिनट दिया. अभी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, बेस बना है. हम लोग अभी करेंगे ना 120-30 क्वेश्चन. क्यों इतना आप डरते हो. और कोई भी, मैं अभी बोल रहा हूँ, कोई क्वेरी हो अपने कमेंट सेक्शन में डू मेंशन योर डाउट्स एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी other doubts related to any session or any question. You can mail me and you'll get my mail in the description of this video. And yeah, mail कर देना मेरे description में. ठीक है, so yes guys, fine. यहाँ देखो, रमेश alone worked half of the work in 10 days. ठीक है, remaining half of was finished by Ramesh and Dinesh together in 2 days. So साथ में कितना करेंगे, 4 days. देखिए 3, ये आप लाइन भी नहीं लिखते, सिर्फ आप सोचते हैं और 4 दिन आपने लिख दिया था. इतना छोटा क्वेश्चन था ये. ठीक है, तो फिर मैं आपको फिर से यही बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपके इंडिविजुअल पर्सन्स आ रहे हैं वहाँ पे एज्यूम करो वर्क. और वर्क कैसे एज्यूम करते हैं, डेज़ के LCM में लीजिए, एफिशिएंसी पे वर्क करिए. और पेमेंट्स हुआ, ये सब डायरेक्टली जितने एक आदमी को कितना पेमेंट हो रहा है वो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कितना उसका एफिशिएंसी है, कितना उसने काम किया. अब काम कौन ज़्यादा करेगा, आइदर वो ज़्यादा टाइम के लिए काम करे, ठीक है, या फिर उसका एफिशिएंसी ज़्यादा हो. तो कितना जिसका ज़्यादा वो काम करेगा उस पर आपकी पेमेंट डिसाइड होगा. ठीक है,
So guys, thank you. This is all for this session. And yeah, I just have one request from you. Do please like, share, comment this video. Please like and share, जितना भी ज़्यादा हो सके उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग अभी ट्यूशन और ये सब नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट उनको बेनिफिट हो, दे कुड वो लोग क्रैक कर सकें कोई भी अपना एग्ज़ाम, जैसे एसएससी, बैंक या फिर डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, सो इजीली वो लोग क्रैक कर सकें. क्योंकि मैं सब कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लगाऊंगा, मैं नहीं ऐसे करने वाला कि ये पेड के लिए है ये अनपेड के लिए, नहीं, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको लगाऊंगा. प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, बस एक शेयर, एटलीस्ट एक तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना चैनल और हिट द बेल आइकन, सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूँ आपके पास अपडेट आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए. सो गाइस, एंडिंग दिस सेशन. Happy learning guys. See you.